मत्ती की इंजील चैप्टर 3 वर्स 17 को पढ़ लें। So we're going to go to the Gospel of Matthew, chapter 3, verse 13. 17। Sorry, verse 17. हाँ जी, हाँ 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 हाँ। ओके, आसमान से एक आवाज आती है A voice comes from heaven खुदावंद यीशु मसीह के लिए, for the Lord Jesus जब वो Christ. जमीन पर एक पुत्र की तरह इस दुनिया में आए। When he came into this world as a son, हालांकि वो आप खुदावंद सृजनहार रचयिता आप हैं, although he himself is the creator and God, पर वो जिस्मानी तौर पर इस जमीन पर जब आए हैं, but when he came into this world physically, उन्होंने अपने सारे किरदारों को, सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। he fulfilled all his roles and responsibilities. एग्जाम्पल के लिए वो बैप्टिज्म की सेरेमनी में भी हिस्सा ले रहे हैं। And for an example, he also partook in a baptism ceremony, हालांकि उनको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं although थी, he wasn't required to get पर baptized. इसलिए कि हमारे लिए वो मिसाल और एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन छोड़ जाएं। But so he can leave back an example, an illustration for us. जब वो उदाहरण को कायम कर रहे थे, When he was fulfilling this, एक ऑडिबल तौर पर आसमान से एक आवाज आती है। a voice came from heaven audibly. ठीक है, क्या आवाज है? And what was that कि voice? खुदावंद यीशु मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। That the Lord, that the Son Jesus is my son, who I am very pleased with. ठीक है, ये एक जो है एग्जाम्पल के तौर पर है And this is in a way of an example कि स्वर्गीय पिता जो हमसे रिक्वायर करते हैं that the Heavenly Father that requires from us कि बच्चे जो हैं जिम्मेदारियों को, कामों को, फर्जों को अदा करें, that children fulfill the responsibilities and all the roles. और उसी तरीके से जमीनी कुछ फर्ज हैं बच्चों के पेरेंट्स के लिए And in the same manner, there are some earthly responsibilities for the parents of the children. कि अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियां, फर्ज, पारिवारिक जो हैं कार्यों को पूरा करना। That you must fulfill their responsibilities at home. नीति वचन जिसे इमसाल या कहावतां कहते ने, चैप्टर 1 वर्स 8 को निकाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। या We're प्रोवर्ब्स going to go to Proverbs. चैप्टर 1 वर्स 8। We're going to go to chapter 1 and verse 8. ठीक है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षाओं पर, तालीम पर तवज्जो दे, ध्यान दे। Listen, my son, to your father's instructions. हाँ जी, आगे। ठीक है, कोई कल डैडी नहीं नाल मम्मी भी जे। So not just your father, but your mother as well. ठीक है, माँ की बातों पर ध्यान दे, पिता की शिक्षाओं पर, तालीम पर ध्यान दे। Pay attention to the instructions of your father and your mother. ठीक है, पूरा कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो खुदावन ने कह दिया है This is a very important part that the Lord has spoken कि of. बच्चों को पेरेंट्स की बातों को, हदायतों को, जिम्मेदारियों को, फर्जों को अदा करने के लिए कहा है। That they're told to fulfill these responsibilities. ठीक है, और इम्पोर्टेंट है कि जितने बच्चे हैं इस बात पर ध्यान दें And it's important for all the children to pay attention to this. कि माँ बाप की इज्जत सत्कार करना 10 हुक्मों में से एक हुक्म है। To obey and respect and honor your parents is one of the commandments from the 10 Commandments. 10 हुक्म, The 10 Commandments. मैं पूछना नहीं है, आज बहुत पूछ लिया है। 10 हुक्म अगर नहीं आंदे तो याद कर लियो। ਉਹਦੇ ਚ एक है माँ बाप की करनी है इज्जत। I'm not going to ask you about the 10 Commandments. I've asked you enough, but one of the commandments out of the 10 is to honor your father and your mother. उनका कहना मानो To listen to them, और उनके प्रति ओबीडिएंट रहे। to obey them and to be obedient towards them. नीति वचन हमें सिखाता है The Proverbs teaches us, बच्चे माँ बाप के लिए दुख का कारण ना बने, let children not be a reason of remorse for parents. प्रॉब्लम ना पैदा करें, Let them not create परेशान problems. ना करें, Let उनको them not trouble them. तंग ना करें। Let them not bother them. इफिसियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है In Ephesians chapter 6 it is कि written अगर हम अपनी माँ बाप की इज्जत करते हैं, that if we respect our parents, इससे आपका भला होगा, you will be beneficial of it. आपकी सेहत ठीक रहेगी, Your health will be well. आप तरक्की करेंगे। You will succeed. कैसे होगा? How will it माँ happen? बाप की इज्जत करने दे नाल ही बस। By just being respectful to your parents. ठीक है, आपके माँ बाप सेव्ड हैं या अनसेव्ड हैं मायने नहीं रखता। Whether your parents are saved or unsaved holds no आपके माँ importance. बाप ने बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, Whether your parents are baptized or not,
वो रिस्पेक्ट, ऑनर, इज्जत के हकदार है। They are still worthy of respect and honor. फिर से मैं ये कह रहा हूँ ये बात, See, I'm repeating this आपके again. माँ बाप प्रभु में है या नहीं है, Whether your parents are in Christ or not, 100% उनकी रिस्पेक्ट, इज्जत करना हमारा फर्ज है। it is 100% your responsibility to respect and honor them, ठीक है, उनका ध्यान रखा जाए। to watch over them. इससे क्या कहा, ये आखिरी हवाला है, मैं आपको बोल देता हूँ। This is the last verse I'm telling you. इफिसियों चैप्टर 6 उसकी 2 आयतें पढ़ दो जरा, We're going to go to Ephesians chapter 6 and read the 2 verses. बहुत जरूरी है। It's really important. मैं आपको गवाही के तौर पर बताता हूँ। I'm going to tell you as a testimony. मेरे पिताजी मेरी अपनी मीटिंग में ही सेव्ड हुए हैं। My own father was saved in my meeting. मेरे ब्रदर मेरी अपनी मीटिंग में सेव्ड हुए हैं और मैंने उनको बपतिस्मा दिया है। My brother was saved during one of our meetings and I baptized ऑलमोस्ट him. 25 मेरे फैमिली के लोगों को मैंने प्रभु में लाया, उनको बपतिस्मा मैंने दिया है। Approximately 25 people I saved and I brought them into Christ. मेरे पिताजी घर पे मेरे डैड के समान होते थे, My father at home was like my father as he has to be, my father at home. but in the church he will be as a congregant. But as a church, he sat there as a congregant. वो हमेशा मुझे पासबान करके संबोधन करते ऑलवेज। He always referred to me as a pastor. और जब भी उनको प्रेयर करानी है And whenever he was to get prayed या for, कुछ भी ऐसी आत्मिक सर्विस जो है रिसीव करनी है, or he was to receive any spiritual service, वो कभी रिलक्टेंट नहीं होके सामने जाके मुझसे प्रेयर कराएंगे। he was never reluctant. He always came before and prayed for God himself 2018 prayed में for. मैं यूके में उनके साथ जो है अलग अलग मीटिंग्स कर रहा था, अलग कन्वेंशंस कर रहा In था। 2018, I was in other different places in UK. हर मीटिंग में मेरे साथ थे In every meeting, he went with me. और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा ने उनको उभारा, And wherever the Holy Spirit overtook he him, has to go and जो है प्रेयर करवानी है उन्होंने, वो गए अपने लिए दुआ अपनी करवाई. जिंदगी को रिडेडिकेट करना है, And he dedicated himself there. बिना रुके बिना कुछ सोचे एकदम से सामने जाके आके प्रेयर You know, कराएंगे। without thinking or anything, he immediately came forward and वो prayed. God कभी himself ऐसे prayed नहीं उनको for. होता था कि ये तो मेरा बेटा है। No, he will think that I'm a man of God. This is how He never thought that this is my son. वो सोचते थे कि ये परमेश्वर का बाहर दास मुझे है. ऑलवेज पास्टर करके संबोधन करते थे वो, When he was outside, he always called or referred to me as a pastor. पर घर पे मैं जो है उनका बेबी हूँ। But at home, I was his He baby. knew the role very well कि कहाँ पर उनको स्विच करना है। वो जानते थे where he was supposed to switch मैं ये over. आपको क्यों कह रहे हैं, ये पेरेंटिंग की निशानी होती है। Because I'm trying to tell you that this is a sign of parenting. एक पिता को अपने रोल पता है, A father is aware of his roles. और मैं ऐसे बेटा होने के नाते And me being a son, जब से मैं सेव्ड हूँ, ever since I've been जब से मैं saved, खुदावन को ग्रहण किया है, ever since I've received the Lord, मुझे ये पता है कि मेरे पिताजी ऑलवेज मेरे बारे में प्राउड फील करते रहे हैं, I know that my God will always be proud of me. और मेरे जितने रिश्तेदारों को ये पता है, And all my relatives that know अगर मैं this, उनके यहाँ जाना है, if I'm to go to their मेरी house, रिक्वायरमेंट है कि मैंने प्रभु का वचन ही उनके साथ शेयर करना my है। requirement was this, that I'm going to share the word वो of God with प्रभु them. में है या नहीं है, Whether they are in the Lord or not. पर मैंने उनको प्रभु की वाणी सिखाना But है, I'm बताना। going to teach them the word of God. और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ And I thank the Lord कि ये इस हैबिट की वजह से कितने मेरे रिश्तेदार खुदा उनमें आए हैं। that due to this habit, many people came into the Lord because तो of मैं it. चाहता हूँ इस बात को ध्यान दिया जाए That I would like that you pay कि attention to हमें this. अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करना है, बाकी फल देना प्रभु का काम है। That on our part we're supposed to do the best and the rest the Lord will do. Amen? Amen. हवाला क्या पढ़ रहे थे हम? What was the verse we're reading? Ephesians? हाँ, हे बालको प्रभु में अपने माँ बाप के क्या आज्ञाकारी बनो। Children, obey your parents in the Lord. हाँ हाँ, ये आपके लिए सही है। हाँ 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 हाँ, राइट, जिसके साथ वायदा भी है। हाँ हाँ, इससे तेरा क्या होगा, भला हो। So that it may be well with you. हाँ हाँ, तो आके उम्र तेरी लंबी होवे। So you can have a long life. माँ बाप दी आपे लंबी हो जानी आ, The parent's life will increase on its own. ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। Yours will increase as well. सुन रहे हो? We're paying attention? God bless you, मैं कह रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं माँ बोल रहा बाप ਦੀ बस ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। हूँ। By just respecting your parents, the doors of blessings ਉਹਨਾਂ will ਦੀ be opened on for ਸਤਿਕਾਰ you. ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾ आपका फायदा है। By honoring them, you are बीमारियां beneficiaries. आपसे दूर रहनी है। Sicknesses will stay away from you. सत्कार सम्मान की वजह से बरकतां के दरवाजे खोल जाने Because of the respect and honor, the doors of blessing So will be do opened your on to best। you. आप किस तरीके से कर सकते इसलिए आप सबसे अच्छा करें अपना जो जितनी कर आप सकते माँ हैं। बाप की इज्जत कर सकते कीजिएगा। As much as you can respect and
honor your parents, do जितना it. कुछ आप उनको जीते जी उनके जो उनको ब्लेस कर सकते करो जाओ, As much as you can bless them while they're living, do it. जितना खुश कर सकते कर लो। As happy as you can make them, do फादर डे it. मदर डे दा वेट नहीं करना है, Do not wait for Father's Day or Mother's Day. एक फ्लावर ना नहीं गल बननी, One flower won't cut it. बेस्ट एवरी डे जो हमें सत्कार करना। सबसे अच्छा, do it every day. आमेन। Amen. पाँव के बल खड़े हो जाते We're हैं। going to raise to your feet. आमेन। आखिरी गीत गा के हम प्रभु के सामने अपने दान हदिया लेके आएंगे। Singing the last worship song, we're going to bring And then our we're tithes going and to offerings to the feet of the Lord. honor the fathers. फिर हम सारे We're going to pray fathers for को honor them. करेंगे, हम उनके लिए दुआ ठीक करेंगे. है, क्विकली जो वर्शिप टीम सामने आ जाए We're going to have the worship team come forward. तो हम आखिरी गीत गाएंगे। We're going to sing the last जैसे गीत song of गाएंगे हम worship. अपने दान दशवांश अपने हाथों में ले लें। And as we do it, we're going to bring our tithes and offering. ठीक है ना, आप अपने हाथों में ले अपना दान दशवांश, You're going to take your tithes and offering in your hands. प्रार्थना करेंगे अपने। And we're going to pray. Father in Jesus name, ये आपने दिया है उसमें से हमारी शुक्राने की भेंट है। परमेश्वर आपने हमें दिया, you've given this to us and we are आप इसे ले अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल You करें। take it and use it for the growth of your kingdom. खुदावन यीशु जलाल पाए, And the Lord Jesus be हमारी glorified. जरूरतें स्वर्गीय खजाने इनसे पूरी होने May पाए। our needs be fulfilled from the heavenly In treasures. Jesus mighty name we pray. यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. ऑफरिंग लेने वाले भाई जो सामने आ जाएं प्लीज। Right. Amen. Glory be to God. प्लीज आप आ जाइए, प्रेयर होगी। कंटिन्यू। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Amen. Thank you, God, Holy Spirit. Thank you, Lord. यीशु जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। 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 क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। 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 कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा। कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा,
आमीन।